کیرلا کی کرناٹکا کے بچوں نے کیا شکایت کی ہے؟ ان بچوں نے یہ کہی کہ آخر ہمارے مسلمان قوم کو، اس قوم کو کیا ہو گیا؟ قوم کے دانشور لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کو وکیل نہیں ملا تو وکیل انہوں نے دیودت کامت نامی ایک نان مسلم لائر کو ہائر کیا۔ بتائیے ہمارے پاس وکیل بھی نہیں ہے کہ حجاب کے اوپر کیس لڑا جائے۔ وہ کیا سمجھے گا کہ what is the status of hijab? What is the meaning of hijab? Is it a compulsory? Is it an integral part of Islam? Is it an essential part of Islam? کیا وہ جانے گا جتنے اچھے طریقے سے ایک مسلمان جانے گا؟ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو right now we have to do something۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ we will have to be something۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھنا پڑے گا۔ حلف الفضول جیسی تنظیمیں بناؤ سماج کے انصاف کے لیے، اس دیش میں ان ڈاکوؤں کے اوقات بتانے کے لیے۔ ایک تو سر پہ بال نہیں، اوپر سے دماغ بھی خالی۔ بیٹیوں کی بچاؤ کی بات کرتے ہو، تمہارے سامنے میں بیٹیاں آگ لگا کر جل کر مر جاتی۔ ان کو ان کے اوقات دلانے کے لیے بھارت کے قانون کو سامنے رکھ کر پوری دنیا بھی تگودوں میں تھرڈ ورلڈ وار کے طرف ہے، یہاں بھارت کے اندر میں بھی کیا ہو رہا؟ اجی حجاب ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے حجاب مینس سر اور منہ اور چھاتی کو ڈھانکنے کا ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے۔ حجاب عموماً بول دیا جاتا پردے کے لیے، لیکن حجاب جو اصل میں یوز کرتی ہماری سماج کی بیٹیاں، ایک دوپٹہ یا ایک حجاب اس طریقے سے جو سر، چہرے کو اور گلے کو، یہ ان کے بریسٹ کو، ان کے سینے کو، پیٹ سے اوپر کا حصہ ڈھانپ لیتے، اس کو حجاب عموماً بولا جاتا۔ برقعے کے اوپر بحث نہیں ہے، آج تک یہ فرق پیدا نہیں کر پائے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر کہ برقعے کے اوپر کیس چل رہا ہے کہ حجاب پر چل رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم حجاب پہن کر آئیں گے کالج میں، ہم یونیفارم پہنیں گے، لیکن یونیفارم کے ساتھ ساتھ ہم حجاب کو بھی سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز کی آزادی چاہتے ہیں، اور اس کا قانونی کیا پرکریا ہے یہ میں کل بتاؤں گا آپ کو، چونکہ آج میں خود ججمنٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس وہاں کے جو دیودت کامت سر ہیں ان سے رابطے میں ہیں، کیا ججمنٹ آتا ہے یا آ گیا ہوگا وہاں کے ہائی کورٹ کا، کرناٹکا کے ہائی کورٹ کا، تو میں پھر آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا، اور کب کب اس کے اوپر کیا کیا کیسز ہوئے حجاب کو لے کر کے وہ پوری تتھیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج اتنی بات تو طے ہے، کنفرم، کہ ہم لوگ نہ بولتے ہیں نہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر پورا تھوپ دیا جاتا، پوری ذمہ داری ہم لوگوں کے سر پر آ جاتی۔ دہشت گردی پہ نہیں بولیں گے تو جناب یو آر دہشت گرد۔ جو آدمی ایک اجنبی شخص کے انصاف کے لیے حلف الفضول جیسی ایک تنظیم بنائے، ایک جماعت بنائے، کیا وہ کسی غریب آدمی کو کسی سماج کے اندر کیا وہ دنگا کروا سکتا ہے؟ کیا سماج کے نہتے آدمی کا قتل کروا سکتا ہے؟ امپاسبل، نہیں کروا سکتا، بالکل نہیں۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے کارنامہ انجام دیا، 20 سال کی عمر تھی، آپ نے انصاف کے لیے آواز بلند کی۔ نبوت تو 40 سال میں آپ کو ملی۔ 10 اگست 510 عیسوی کو قرآن کریم کی پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں نازل کی گئی محمد رسول اللہ پر، سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ پر یہ 40 سال کی عمر۔ لیکن اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے کچھ کارنامے تھے، آپ علیہ السلام کی کچھ اچھائیاں تھیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی، نبی پاک علیہ السلام تو 40 سال کے بعد فیمس ہوئے، ان سے پہلے تو آپ علیہ السلام ایسے تھے، ویسے تھے، الیاذ باللہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، فلاں ڈماکہ کوئی چیز محفوظ نہیں، سیکیور نہیں ہے۔ محفوظ، سیکیور ہے،
भारत के अंदर कम से कम 5 से 6 किताबें ऐसी जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले की जिंदगियां महफूज की हुई। दुनिया वालों, तुम्हारे पास नहीं है कोई ऑप्शन, मैं नहीं बल्कि ये कुरान कहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये ऐसी किताब कोई शक नहीं है, अगर तुमको दर्द का इलाज चाहिए तो तुमको कुरान करीम के अंदर मिलेगा। अगर तुमको सूरज चलता है या सूरज रुक कर है, ज़मीन घूमती है या ज़मीन रुकी हुई है, अगर इस झगड़े को तुम्हें सुलझाना हो तो कुरान करीम को पढ़ना होगा। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। आज जो साइंस का नज़रिया है वो इसी आयत पर है कि सैयारे और सितारे, ये दोनों चीज़ें, ज़मीन और आसमान और ये चांद सितारे, ये सब के सब अपने अपने मदार पर गर्दिश करते हैं। 1800 साल तक अरस्तू का ये नज़रिया था कि सूरज रुका हुआ है, ज़मीन घूमती है। उससे पहले 150 साल तक अर्तुगरूस का एक नज़रिया था, लेकिन उनका भी नज़रिया फेल हो गया, अरस्तू का भी नज़रिया फेल हो गया। आज अगर किसी नज़रिए पर, आज के नज़रिए का बानी कौन है, आज का सबसे बड़ा साइंसदान कौन, किसको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये ज़मीन भी और आसमान भी और ये सूरज भी, ये दोनों के दोनों घूमते हैं। आज उन्होंने इस नज़रिए को कायम किया, लेकिन ये नज़रिया कहाँ से निकाला उसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हे दुनिया वालों और हमारे भारत के अंदर अनपढ़ और गवार आरएसएस बजरंग दल के लोगों, कुरान से नफरत करने वालों, ये नज़रिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कुरान करीम से उठाया है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये सूरज और चांद और ये ज़मीन, ये सब के सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। यही नज़रिया आज के साइंसदानों का भी है। आज कुरान पर लोग एतराज़ करते, कुरान में ये नहीं है, कुरान में वो नहीं है। कुरान में सारी चीज़ें हैं, वो नजर चाहिए तुम्हें। भक्ति का, अंधभक्ति का चश्मा उतारो, मानवता का, इंटेलिजेंसी का चश्मा लगाकर देखो, तुम्हें कुरान में सब मिलेगा। कुरान में दर्द का इलाज चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम के अंदर कार्बन ऑक्सीडेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम के अंदर इवापोरेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम के अंदर बर्निंग ग्लासेस चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम के अंदर अलजेबरा की गिनती चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम के अंदर सर्जरी करने के आलात चाहिए तो वो भी मिलेगा, कुरान करीम में मिसाइल बनाने के लिए तांबे चाहिए, लोहे चाहिए, गैस चाहिए तो वो भी मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने आदम के औलाद को तमाम चीज़ों का मालूम दिया है, और ज़मीन के नीचे अल्लाह ने गैस को, पेट्रोल को, सोने को, चांदी को, लोहे को, तांबे को छुपाया ताकि आदमी आगे चलकर अपने दिमाग से इन तमाम चीज़ों को निकाल कर वजूद में ला सके, इस्तेमाल में ला सके। आज अगर तुम मिसाइल बनाते हो तो तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, कुरान का फरमान है। इतराओ मत अपने ग्रंथों में, हमारे पास जो ग्रंथ है मुकाबला करवा लो किसी भी मैदान में, इंशाअल्लाह वी विल सक्सेस, वी विल चैलेंज अगेंस्ट यू इन द एवरी फील्ड। हर फील्ड में मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, कुरान करीम के जरिए से मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम जवाब नहीं दे सकते बिकॉज यू हैव नो चॉइस, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास क्या है? वो गोबर से गैस बना लो। कहते हैं अभी जलसों में राजनेता लोग उत्तर प्रदेश में, भाइयों बहनों याद रखिए, दोबारा हमको कुर्सी में लाइए, हम गोबर से गैस बनाकर दिखाए। वाह भाई वाह, गोबर से कैसे गैस बनाएंगे जी? कुछ दिनों पहले चिल्ला रहे थे कि नौजवानों तुम चाहे एमटेक कर लो, एमबीबीएस कर लो, एमडी कर लो, डीएलएड कर लो, बीएड कर लो, एमबीबीएस बन जाओ, एमडी बन जाओ, तुमको नौकरी चाहिए तो जाकर पकौड़ा तलो। कई जगह आपने व्हाट्सएप फेसबुक में देखा होगा कि कहीं पर क्या है, एमबीबीएस टी स्टॉल, यानी एमबीबीएस डॉक्टर की चाय की दुकान। कहीं पर देखा होगा एमटेक
एम टेक पकोड़े की दुकान, यानी एम टेक किया हुआ है, टेली किया हुआ है, हायर स्टडीज से क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पकोड़ा खोल के बैठा हुआ है, कोई चाय की दुकान लगा के बैठा हुआ है, बस चप्पल सिलवाना बाकी रह गया। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि चप्पल लेकर बैठ जाओ, चप्पल सिलवाओ, वो भी एक नौकरी। जब चप्पल सिलना ही होता तो करोड़ों रुपए खर्च करके क्यों एमबीबीएस की नौकरी हमने ली? ये भी एक सवाल है। और एतराज कहां मरते हैं आके? कुरान पे। एतराज कहां मरते हैं आके? इस्लाम पे। मिलते कुछ नहीं आके डायरेक्ट यहीं पर लाकर ठोक देते। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुबान दी थी, दुनिया की सबसे पुरानी जुबान मानी जाती है, और हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान को क़यामत तक आने वाली बहुत सारी चीजों का उलूम बताया, सिखाया। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। इसीलिए फजीलत बड़ी है किनके सामने? फरिश्तों के सामने में इंसानों की एजुकेशन, नॉलेज, जानकारी की वजह से। लेकिन मेरे साथियों, हम लोग अगर खामोश रहते हैं, बोलते नहीं है, तो इल्ज़ामात के बारिश कर दिए जाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे, कुछ भी नहीं थे। अरे वो तो तुम्हारी तंग नजरी है, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अपनाया, जो बताया, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तुम भी तो करीब आकर के देखो। अगर तुमको तुम्हारे मकसद की चीज वहां पर ना मिल जाए, मुसलमानों, मेरे नौजवानों, वी शुड टू प्राउड टू बी अ मुस्लिम। हमें मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए, एहसास कम तरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि नहीं मौलाना कुरान पढ़ लेंगे, हाफिज बन जाएंगे, मौलाना बन जाएंगे, हमारे बच्चे तो क्या करेंगे, मस्जिद में लोटा तोड़ेंगे, मदरसे में जाकर चटाई काटेंगे। नहीं, if you know and if you hard work, तो definitely I'll suggest you, definitely I'll tell you, मैं आपको कहता हूं कि you will be great person in the whole educational field। अगर आप चाहें तो बन सकते हैं। हमारा मकसद है हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह उसको सिविल सर्विसेज में डालें। आप भी कर सकते हैं। ये मत कहिए कि नहीं इस्लाम में आ जाएंगे तो कुछ नहीं है। अरे दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम चीजों का मंबा और मखरज कुरान और हदीस से ही निकलता है भाई। जरूरत है देखने। अभी तो मैंने आपके सामने एक झलक रखी, मैं बताऊंगा कल को इस टॉपिक पर बात करूंगा मैं कि साइंस का वजूद कहां कहां से, कैसे कैसे, किस किस अंदाज में कुरान करीम से निकला, कुरान करीम से लिया गया। उससे पहले बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले की जिंदगी की चल रही थी। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल से पहले की जिंदगी के अंदर कहीं ना कोई डिफॉल्ट है क्या? लोग जो एतराज करते हैं कि जी कनाब कहीं ना कहीं कोई डिफॉल्ट है, कहीं ना कहीं कोई शक है, नहीं है। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने जब आपको नबूवत नहीं दी गई, नहीं मिली थी, तब भी आप कौम के लिए मुतफक्किर थे, तब भी आप गरीबों की, तब भी आप यतीमों की, मिस्कीनों की और मेहमानों की और बेसहारा लोगों की मदद किया करते थे। आज तक कहीं किसी की तारीख मौजूद है? किसी की भी नहीं है। बड़े बड़े पुरुषोत्तम तो लोग आए इस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े लोग आए इस धरती के ऊपर, ग्रेट पर्सन, ऋषि मुनि लोग आए इस धरती पर, लेकिन किसी की जिंदगी देखो, किसी की जिंदगी खून से रंग, किसी का हाथ खून से रंगा हुआ है, तो किसी की पूरी जिंदगी के अंदर कत्ल ही कत्ल है, कातिल बने बैठे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो। नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया के लोगों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक फिरके के लिए, किसी एक कबीले के लिए नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए कहा नराशन समहा प्रिय मसीह के, पूरी दुनिया तारीफ करेगी उनकी। यूं ही नहीं कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ लफ्जों में अदल्लबू कमे कम अदल्लबू का निखादकम। अगर आपको एतराज है कि नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नबूवत से पहले जंग में चले गए, अपने चचा के साथ जंग में तीर पकड़ा रहे हैं कि अबू तालिब चचा ये ले तीर और मुकाबला करो उनसे। तो तीर पकड़ाना जंग में गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता
تو श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में पहले उस श्लोक के पहले मंत्र में तीर की बात, तलवार की बात, जंग की बात, जंग मैदान की बात, बैटलफील्ड की बात कही गई है। देखो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्समः मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र का बेटा जितने कोरु थे 100 के 100, उनका जो बेटा सबसे बड़ा ताकतवर दुर्योधन था, उसी की जुल्म और तशद्दुद की वजह से पांडवों के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था मुकाबला करने का, जंग करने का। अगर आपको जंग फिजार पर कोई एतराज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग बद्र करने पर कोई एतराज है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग उहद में शरीक होने से आपको कोई एतराज है, ये पर्टिकुलर भारत के उन लिबरल समाज के लोगों को, भारत के अंदर उन भगवाधारियों को, भारत के अंदर उन कम्युनल माइंड रखने वाले लोगों के लिए जो कहते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद ने जंग की, तुम्हारे मोहम्मद ने तलवार लेकर गए और घोड़े पर बैठकर लोगों को डराया था, तब जाकर कलिमा पढ़ा था। पूछो ना इन लोगों से कि ये तेजसन को हैदराबाद, वो थाईलैंड के वो चियांग माई यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट ऑफ अटॉर्नी का, उसको किसने मजबूर किया था? उसको तो किसी ने मजबूर नहीं किया था, उसको तो कुरान करीम की सदाकत ने मजबूर किया था, कुरान करीम की अदालत ने मजबूर किया था, कुरान करीम के पैगाम ने मजबूर किया था कि तुम कुरान पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो थ्योरी तुम पेश करते हो वो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है। जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हम लोग बोलते नहीं हैं, अपने तकरीरों में इन बातों को बोलने की ज़रूरत है, आवश्यकता है।